بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کی رات تھی اور میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ روہیل کے بارے میں میری نندے مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ بے حد رومانٹک قسم کا نوجوان ہے اور میری تصویر دیکھ کر یہ میرا دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہ تھی جو رومانس کا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ مجھے ایک نارمل لائف پسند تھی۔ شوہر کا ہر وقت بیوی کی تعریفیں کر کے آگے پیچھے گھومتے رہنا مجھے چھچورا پان سا لگتا تھا، اور ایک روہیل بالکل ویسا ہی تھا۔ شادی کی رات ہی اس نے میری تعریفوں کے لیے سیدھے سادے الفاظوں کے بجائے ایک غزل مجھے سنائی تھی۔ مجھے آج تک کبھی شاعری سمجھ ہی نہیں آئی تھی، اس لیے اس کی رومانٹک شاعری بھی میرے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کیسی لگی غزل؟ میں نے کہا جی اچھی ہے۔ بہرحال ایک ہی ساتھ میں اور سمجھ آتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے۔ روہیل عام مردوں سے مختلف تھا۔ مردوں کی طرح مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ماں کے آگے زبان مت چلانا، ان کے حکم کے آگے سر جھکائے رکھنا، میری بہنوں کی خدمت کرنا، یا وہ جب اپنے سسرال سے یہاں آئیں تو انہیں شکایت کا موقع نہ دینا۔ یہ سب کچھ نہیں کہا تھا اس نے، تو بس اپنی اور میری بات کی تھی۔ شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے تھے۔ روہیل کا ارادہ تھا کہ ہم لوگ ہنی مون کے لیے ایبٹ آباد جائیں اور اس کے بعد سیف الملوک، نران، کاخان لائف کو بہت زیادہ انجوائے کریں۔ شوق تو مجھے بھی بہت ہے لیکن گھومنے پھرنے کا، لیکن شادی کے فوری بعد ہی میرے سسر کی طبیعت کچھ خراب سی رہنے لگی، اس لیے انہوں نے ہمیں جانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگے کہ اگلے مہینے چلے جانا، ایک تو شادی پہ بہت زیادہ خرچہ ہو چکا ہے اور اب میری بیماری پر بھی آج ہی ہاسپٹل پر پیسے لگ رہے ہیں۔ اصولاً تو اس بات پر میرا موڈ بہت خراب ہونا چاہیے تھا، لیکن میں بالکل نارمل تھی۔ البتہ روہیل کا موڈ بے حد خراب تھا۔ کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ سب لوگ شادی کے فوری بعد ہنی مون پر جاتے ہیں، ایک مہینے بعد کون جاتا ہے؟ میں نے کہا روہیل کوئی بات نہیں، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاں ہم اگلے مہینے چلے جائیں گے۔ میرے پیار سے سمجھانے پر بس اسی ایک کام ہی آتا تھا، مجھ سے محبت بھری باتیں کرنا۔ میں تو خیر مجھے بھی یہ سب اچھا لگتا تھا، لیکن یہ ایک مہینے بعد جب میرے سسر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور ہماری اسلام آباد جانے کا پروگرام بنا تو اچانک سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری تو الٹیاں ہی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جو بھی کھاتی تھی فوراً سے نکل جاتا تھا، اور میری ایسی حالت پر سب سے زیادہ ٹینشن میرے شوہر کو محسوس ہوئی تھی۔ میرے ساتھ مجھے ڈاکٹر پر لے گئی میری ساس، اور جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا سبب تھی، کیونکہ میں ایک مہینے بعد ہی امید سے ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے میرا سفر منع کر دیا تھا۔ کہنے لگی تمہارے لیے اسلام آباد اور مری جیسی جگہوں پر جانا خرچے سے خالی نہیں ہے، پہلی پریگننسی ہے، احتیاط بہت ضروری ہے، اگر ایک بار مسئلہ ہو گیا تو پھر ہر بار مشکل ہو جائے گی۔ میں تو ان چیزوں سے ویسے ہی بہت گھبرا رہی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ میری ساس کو بھی یہیں بہتر لگا، لیکن جب یہ خبر روہیل کو معلوم ہو گئی تو اس نے تو شور میں مچانا شروع کر دیا، اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روہیل کی یہ بات سن کر میرا سانس سینے میں تھم گیا۔ تو اسے کیا لگ رہا تھا؟ میں بری ہوں، بد کردار ہوں؟ لیکن اس کے اگلے جملے نہیں میری اس بات کی تردید کر دی۔ کہنے لگا اتنی جلدی ہوتا ہے عمل؟ 6 مہینے شادی کی لائف کو بندہ انجوائے کرتا ہے اور ایک دم ہو کے اتنی جلدی؟ کیا چند ماہ بعد یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا روہیل اس نے میرا کیا اختیار ہے؟ کہنے لگا دیکھو اس چیز کو اتنا زیادہ ایشو مت بناؤ، ہم ابورشن کروا لیتے ہیں، بچہ چند ماہ بعد پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں نے کسی قیمت پر اپنے بچے کا قتل نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا تو پھر پریگننسی میں بھی عورتیں سب کچھ کرتی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مری کے راستے دیکھے ہیں، سارے راستے پہاڑی قسم کے ہیں اور اس سے آگے سیف وغیرہ میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ کوئی بات نہیں، جب ہمارا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو ہم پھر چلے جائیں گے۔ لیکن روہیل کا موڈ اس بات پر بہت خراب تھا۔ اگلی صبح میرے ساتھ سسر نے بھی ہمیں جانے سے منع کر دیا کہ ایسی حالت میں سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی ناراضگی نہیں دکھائی، کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے میرے حق میں بہتر کہہ رہے تھے۔ البتہ روہیل کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ اکثر میرا کھٹی چیزیں کھانے کو جی چاہتا تھا، میں اسے منگواتی تو کہتا مجھے سب چونچلے بازی پسند نہیں ہے، ایک تو تم نے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا، اور اب تو نہیں ان گرمیوں کے موسم میں کینو کھانے کا جی چاہ رہا ہے، کہاں سے لاؤں میں یہ سب کچھ؟ لیکن میں نے نہ تھی، کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔
جس چیز کا میرا جی چاہتا مجھے وہ چیز روہیل لا کر ہی نہیں دیتا تھا۔ ایک بار میں نے اسے گول گپے منگوا لیے لیکن وہ نہیں لے کر آئے۔ میرا دل اتنا برا ہوا کہ میں رونے لگ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا دل کیوں شدت سے گول گپے کھانے کو کر رہا ہے۔ شاید یہ سب وقت ہوتا ہے کہ عورت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں اتنا روئی کہ پوری رات میری روح رو کر گزری تھی۔ اگلے روز میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میرے سسر اور ساس پوچھنے لگے۔ مجبوراً میں نے اپنی ساس کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں اس نے تمہاری خواہش کی چیز لا کر دی؟ ایسی حالت میں تو عورت کو خوش رکھنا چاہیے۔ اگلے روز میری ساس نے مجھے لیٹ بھر کر گول گپے دیے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کے وقت میرا جی متلانے لگتا۔ جیسے ہی روہیل میرے قریب آتا مجھے اوکائیاں سی آنے لگتی۔ ایسے موقع پر روہیل کو میری حالت سمجھنی چاہیے تھی۔ وہ اس بات سے چلنے لگتا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر فوراً واش روم میں بھاگتی جاتی۔ مجھے الٹی ہوتی تو سب سے زیادہ بیزار شکل واش روم سے باہر آ کر مجھے روہیل کی دیکھنی پڑتی۔ بالکل بے حال ہو کر بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ پلیز مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ بجائے میرے ساتھ احساس کرنے کے تو کہنے لگتا، میرا دماغ خراب مت کرو، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا ہے تم نے۔ جب دیکھو تمہیں بس ایک ہی کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا لاف اٹھا کر سو گیا اور میں بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ایک تو شادی کی فوری بات، گھر کی ذمہ داری اور پھر اتنی جلدی پریگننسی۔ میری زندگی بھی تو یکسر بدل چکی تھی۔ ایک مہینے میں کیا سے کیا ہو چکی تھی اور یہ سب کچھ میرے لیے بھی پہلی بار تھا۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسوں صاف کیے، بڑی مشکل سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ جیسے ہی 4 مہینے ہوئے میرا وجود کچھ زہر ہونے لگا تھا۔ جب بھی میں روہیل کو بولتی ہی میرے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس چلو، مجھے چیک کروانا ہے، تو وہ مجھ سے چڑھنے لگتا۔ کہنے لگتا ہے، اس حالت میں زہر لگ رہی ہو تم مجھے، ایسے تمہیں باہر لے کے جاؤں گا تو لوگ نہ جانے مجھے کن کن نظروں سے دیکھیں گے۔ ایسا کرو، امی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اپنے بیٹے سے چند ہزار نکال کے وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ ایسے بہت منوانے کی کوشش کرتی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، تم میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں کر رہے ہو۔ اب یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ 9 ماہ میں نے بڑی تکلیف میں گزارے تھے، کیونکہ 9 ماہ میں ایک دن ایسا نہ تھا جس دن مجھے الٹی نہ ہوئی ہو۔ لیکن میرے صبر کا پھل میرے رب نے مجھے بہت خوبصورت دیا تھا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس دن تو روہیل کے چہرے کی مسکراہٹ ہی کا اتنی ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو اپنی بہوں میں بھرا تھا، پیار کیا تھا۔ زہر اولاد ہی ہوتی ہے۔ سب لوگ بہت خوش تھے، میری نندیں، ساس، سسر اور خاص طور پر روہیل۔ میرا بیٹا سی سیکشن سے ہوا تھا، اس لیے مجھے چلنے پھرنے میں بے حد تکلیف ہوتی تھی۔ پورا دن تو میری ساس اور نندیں اور گھر کی ملازمہ میرا خیال رکھ لیتی تھی، لیکن اگر رات کو مجھے واش روم جانا پڑتا تو یہ میرا ہاتھ تک نہیں پکڑتا تھا۔ کہتا تھا، پلیز یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں بڑی مشکل سے بیڈ سے اٹھتی تھی، دیواریں پکڑ پکڑ کر سہارا لیتے ہوئے واش روم جاتی تھی۔ پھر یہ بھی خوف ہوتا تھا کہ کہیں گر گئی تو مصیبت آ جائے گی۔ ابھی میں بہت مشکل سے تکلیف کو سہتے ہوئے واش روم سے باہر آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی، بری طرح سے پسینے سے شربور ہو چکی تھی۔ میرا سانس سے سانس نہیں مل رہا تھا، بری طرح سے ہانپ رہی تھی کہ میرا بیٹا احمد رونے لگا۔ شاید اسے بھوک لگی تھی اور روہیل اسی وقت شاید نیند میں گیا ہی تھا، لیکن احمد کے رونے کی آواز سن کر بجائے اسے پکڑنے کے مجھے کہنے لگا، نور پلیز اسے چپ کراؤ، مجھے صبح آفس ہی جانا ہے۔ کہاں تھوڑی دیر کے لیے اسے پکڑ لو تو دیکھ نہیں رہے میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ کہنے لگا، بس بھی کرو، یہ بچے سنبھالنا پالنا میرے اختیار کی بات نہیں ہے، میں سب نہیں کر سکتا، پکڑو بھائی اسے، عجیب مصیبت ہے، رات کو سونا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تکیہ اور لاف اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ احمد روئے جا رہا تھا اور میری حالت تھی کہ میں بیٹھنے سے بھی قاصر۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے پاؤں بیڈ پر لٹکائے اور بے آنسو کے ساتھ اپنے بچے کو پکڑا تھا، اسے سینے سے لگا کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا یہ ہوتی ہے مرد کی محبت؟ میں اسی کی اولاد تھی۔ کیسے 9 ماہ میں نے اپنے وجود کا حصہ بنایا تھا اور ایک موت کے مرحل سے گزر کر اسے باپ کا درجہ دیا تھا کہ اس کا اتنا بھی فرض نہیں بن پایا تھا کہ وہ میری حالت کے پیش نظر ہی مجھ پر رحم کھا لیتا۔ 40 دن میں جانتی تھی کہ میں نے کیسے گزارے تھے۔ بے شک میری ساس بہت اچھی تھی،
लेकिन 10 दिन बाद उसने भी मुझसे कह दिया था कि थोड़ा सा तुम भी किचन में चली जाया करो, रोहेल को तुम्हारे ही हाथ के नाश्ते की आदत है। मैं नाश्ता बना कर देती हूँ तो 100 नुक्स निकालता है। जैसे ही मैंने 40 दिन बाद नहाया नमाज शुरू की, रोहेल का सब्र भी शायद जवाब दे गया था। ना उसे मेरा एहसास था, ना ही छोटे बच्चे का। उस दिन अमर के पेट में दर्द था, वो बार बार सोया हुआ उठकर रोने लगता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। रात के 2 बजे अमर को सुलाने लगी थी। मैं खुद भी नींद से बेहाल हो चुकी थी। जैसे ही अमर गहरी नींद में गया और मैं सोने के लिए लेट गई, उसी वक्त रोहेल मेरे करीब आ गया। मेरी आंखें नींद से चूर थी। मैंने कहा, प्लीज़ रोहेल, मुझे सोने दो। कहने लगा, बको मत, 1 महीने से बस तुम्हारी शक्ल ही देख रहा हूँ। ख़बरदार जो आज मुझे ज़रा भी नखरा दिखाने की कोशिश की तो वो रात मेरी रोहेल की नज़र हो चुकी थी। लेकिन मुझे सोए हुए बस 1 घंटा ही गुजरा था कि अमर उठकर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ही उठना पड़ा था। मेरा जी चाह रहा था कि दूँ क्या सारी कुर्बानियाँ औरत के लिए होती हैं। 6 बजे अमर का रोना शुरू हुआ था और सुबह 9 बजे तक जारी रहा। मैं उसे गोद में लेकर कमरे में चक्कर लगाती रही। जाकर वो सोया था और मेरी ये हालत थी कि चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। अमर को बेड पर लेटाकर मैं कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि सास ने भी रात को कह दिया था कि अब कल से घर संभालो। इसलिए सास ससुर को नाश्ता बना कर दिया। फिर रोहेल की ऑफिस की तैयारी करने लगी। पूरा दिन मेरा अब घर के कामों से में चक्कर बने गुजरने लगा था। रात को अमर सोता तो रोहेल अपनी बेताबियों के साथ जाग उठते। कई बार मैं उनसे कह चुकी थी कि मेरा ऑपरेशन है, रोहेल कुछ तो मेरा भी एहसास करे, लेकिन मर्द को शायद इन बातों से कोई सरोकार नहीं होता। वो मुझसे मुआनका करते हुए कहने लगते, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? कसम से बड़ी जालिम हो तुम। इतना चाहने वाला शौहर है तुम्हारा और एक तुम हो कि उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के बजाय नखरे दिखाती हो। मैं सब सुनकर मैं चुप हो जाती थी। दिन रात की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं थक चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी मांद पड़ने लगी थी। रात रात अमर मुझे रातें जगाए रखता था। दिन भर सोता रहता था और दिन भर मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी आंखें के गिर्द हल्के गहरे होने लगे थे। उस पर रोहेल अब मुझे बात बात पर ताने देने लगते थे। कहते थे, तुमने क्या एक ही बच्चे के ही अपना वेट इतना गेन कर लिया है? कम ऑन यार, थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें पता है ना मुझे मोटी लड़कियों से कितनी चिढ़ है। प्लीज़ खुद को रेस्ट रखा करो। रोहेल न जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ा सा होने लगा था। हालांकि घर के बच्चे की जिम्मेदारी के बावजूद भी मैं रोहेल के घर आने से पहले ज़रूर तैयार हो जाया करती थी, लेकिन आजकल उसे मुझसे बस ऐब ही ऐब नजर आने लगे थे। 1 साल बीत गया था। अमरा पाँव पाँव चलने लगा था, लेकिन रोहेल का रवैया यकसर बदल चुका था। अक्सर ऑफिस से आते ही खाना खाकर दोस्तों में जा रहा हूँ, देर से आऊँगा कहकर चला जाता। मैं कई बार रोहेल से कहती कि मुझे और अमर को कभी तो कहीं घुमाने ले जाया करो, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। आजकल मैं बिज़ी हूँ, ऑफिस के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुम अभी अम्मी अबू के साथ चले जाया करो। ये कहकर वो तैयार श्यार होकर दोस्तों में चला जाता। रात को देर से घर आता। कभी कभी तो रात के 2 बजे तक मैं उसका इंतज़ार ही करती रहती। लेकिन एक बार जब वो घर आया तो उसकी आंखें मुझे नशे से चूर लग रही थी। गाने गुनगाते हुए वो घर में दाखिल हुआ था। मैं उस वक़्त बहुत गुस्से में थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर चुटकी काट कर कहने लगा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो जान जाने मन। ये कहकर कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने घर का मेन गेट बंद किया और कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद किया और रोहेल से कहने लगी कि आपने ये क्या तमाशा लगा रखा है? रोज़ आप 2 बजे आते हैं। ऐसे कौन से दोस्त हैं जो आपके रात भर बहर आवारागर्दी करते रहते हैं? क्या उनकी बीवियां उनसे पूछती नहीं हैं? मेरे तपे हुए लहजे सुनकर रोहेल भी संजीदा हुए थे। कहने लगे, मतलब क्या है तुम्हारा? सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहा करूं, कहीं आने जाने पर भी बंदी है मुझे। मैंने कहा, रोहेल, हर चीज़ की एक हद होती है। सिर्फ दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में रह गए हैं वक़्त गुजारने के लिए। मेरा भी दिल चाहता है कि आप मुझसे बातें क्या करें। वो मेरी बात सुनकर कहने लगे, तुम्हारे पास वक़्त ही कब होता है मेरे लिए? जब देखो अमर अमर करती रहती हो। यूँ मैं तुम तो रोहेल की बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। मैंने कहा, आपको अपने बच्चे से जक्स है? रोहेल वो कहने लगे, शट अप नूर, मुझे क्यों अपने बच्चे से
यक्स होगी। बस मेरी मसरूफियात बढ़ गई हैं। ऑफिस से थका आता हूँ तो मुझे रिलैक्स चाहिए होता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। अब तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं। ये कहकर वो अपने कपड़े तब्दील करके सो गया। अगले ही रोज़ जब मैं इसके कपड़े धोने लगी तो उसकी शर्ट की पिछली जानब लिपस्टिक का निशान देखकर मेरे होश उड़े थे। मैंने वो शर्ट वैसे ही रहने दी। पूरा दिल, मेरा दिमाग गुस्से के मारे खोलता रहा। मुझे याद आने लगा कि जब रोहेल ने अपने मोबाइल पर कोड लगा रखा है, पहले कभी नहीं लगाया था। अब वो अक्सर कमरे में बैठा फ़ोन पर हंस हंस कर बातें कर रहा होता है था। जब भी मैं कमरे में एमर को सुलाने के लिए लेकर आती तो फ़ौरन से फ़ोन बंद कर देता था। कहता जब बाद में तुमसे बात करूँगा। जब मैं पूछती किसका फ़ोन तो गिड़बड़ा सा जाता था। कहता दोस्त का फ़ोन है, और फिर बात को फ़ौरन बदल देता था। रात को जब रोहेल ऑफिस से वापस आया तो खाना खाते ही मुझसे कहने लगा मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, रात को देर से आऊँगा। मैंने कहा कि आज आप कहीं नहीं जाएंगे। वो कहने लगा फिर तुम्हारा वही रोज़ का तमाशा शुरू हो गया है। वो गुस्से से मुझसे कहने लगा। मैंने अलमारी से उसकी शर्ट निकाली, उसके ऊपर फेंक दी। मेरी इस हरकत पर वो कहने लगा क्या बदतमीज़ी कर रही हो तुम मेरे साथ, ये क्या हरकत है। शर्ट उसके मुंह पर जाकर लगी थी और फिर ज़मीन पर गिर गई। वो मुझे गुस्से से देख रहा था। मैंने वो शर्ट पकड़ी और लिपस्टिक का निशान दिखाया। मैंने कहा जैसे ही उसकी नज़र लिपस्टिक के निशान पर पड़ी उसकी रंग तक उड़ी थी। मैंने कहा तो ये है वो दोस्त जिससे हम रोज़ मिलने जाते हैं। रोहेल कौन है ये लड़की? वो मुझसे नज़रें चुराने लगा। मेरा लहजा बुलंद हुआ था। मैंने कहा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। कौन है ये लड़की जो आपके इस हद तक करीब है? मेरी आवाज़ में ना चाहते हुए भी नमी सी उतर आई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में या मेरी वफा में जिसका आपने मुझे ये सिला दिया है। मेरी बात पर वो तंजिया मुस्कुराया, कहने लगा मोहब्बत। फिर मेरे पास आकर कहने लगा कौन सी मोहब्बत की है तुमने? मुझे हाँ अपने पास तो आने नहीं देती थी। एक माह बाद भी तुम्हें बच्चे पैदा करने का शौक़ हो गया। मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। हम खामोशी से अबॉर्शन करवा लेते, किसी को कुछ पता नहीं चलता। बच्चे का क्या है, 3-4 माह बाद फिर हो जाता। लेकिन तुम नहीं मानी। तुम पर तो दीन उतरा हुआ था। ये बच्चा ज़ाया करना गुनाह है और तुम ये गुनाह किसी कीमत पर नहीं करोगी। नूर अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी बात मानती। हम इस्लामाबाद मरी जाते, अपनी लाइफ को एंजॉय करते। मेरी औलाद थी ना फिर हो जाती। लेकिन तुम्हें मेरी बीवी बनने से ज़्यादा माँ बनने का ज़्यादा शौक़ था। फिर मुझे बाजू से पकड़ के आईने के सामने ले गया। कहने लगा देखो खुद को, ये हुलिया है तुम्हारा कपड़ों से। खुशबू की बजाय किचन के मसालों की बू आती है। रात को तुम्हारे पास आऊँ तो तुम्हें एमर के 8 उठ जाने की फ़िक्र सुनाती है। सुबह जल्दी उठकर अम्मी अब्बा को नाश्ता देने की फ़िक्र सताती है। सब की फ़िक्र है तुम्हें। नूर बस मेरी परवाह नहीं है। और अगर मैं थोड़ी सी दिल लगी करने लगा तो आज तुम सवालों जवाब कर रही हो। मैं तो रोहेल की बात सुनकर जितना हैरान होती इतना ही कम था। मैंने कहा ये घर किसका है? मैं किसके घर को संभाल रही हूँ? किसके माँ बाप को सुबह नाश्ता देने की मुझे फ़िक्र सताती रहती है? किसकी औलाद पैदा करने और पालने की खातिर मेरा ये हाल हो चुका है? मेरे चेहरों की रौनक ख़त्म हो चुकी है। मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके हैं। मैं रोने लगी। मुझ पर हज़ियानी सी कफ़ियत तारी हो गई। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ के रख दिया, जहाँ तक कि उसकी शर्ट के बटन टूट गए थे। मैंने कहा मैं इस घर में क्या हैसियत रखती हूँ? मुलाजमा हूँ तुम्हारी या तुम्हारे माँ बाप की या तुम्हारी बहनों की कि जब वो आती हैं तो मैं पूरे टेबल सजा देती हूँ। एमर मेरा बेटा है, क्या तुम्हारा कुछ नहीं लगता? मैंने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारा घर संभाल रही हूँ और तुम्हारी ही बच्चे को पाल रही हूँ। तुम होते कौन हो मेरे साथ बेवफाई करने वाले? मैंने कहा रोहेल मैं इन औरतों में से हरगज़ नहीं हूँ जो मर्द की इस किस्म की अय्याशी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए उसके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला सके। मेरा ये कहना था कि उसने अपने गिरेबान से मेरे हाथ छुड़वा कर मुझे पीछे धकेला। कहने लगा ठीक है जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। बैर तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो ऐसे ही गुजारा करना होगा मेरी इसी अय्याशी के साथ, क्योंकि मैं अब नैमा को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तो रोहेल की बात सुनकर चकरा कर रह गई थी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले
और बेड के नीचे रखे बैग में अपने कपड़े डालना शुरू कर दिए। ये देखकर रोहेल बड़े गुस्से से मेरे पास आया, मुझे बाजू से पकड़ कर कहने लगा, सोच समझ के इस घर से कदम बाहर निकालना। नूर, अगर तुम गई तो तुम्हारी जगह नईमा ले लेगी, मैं उससे शादी कर लूँगा। ये सुनना था, मैं तो अगला सांस लेना भूल गई थी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। हमारे शोर शरारे से अमर उठ गया था। अब वो रोए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे चुप नहीं करवाया। मैं खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। हम दोनों की रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो? बेटा और अमर को देखो, रो रो के हलकान हो रहा है, क्यों नहीं पकड़ रही उसे? मैंने कहा कि आपके बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या किया है रोहेल ने? मैंने कहा, मेरे होते हुए दूसरी औरतों के पास जाता है। ये सुनना था कि मेरी सास भी गुस्से में आ गई। उसने रोहेल को फ़ोन करके घर पर बुलाया। ये बात अब मेरे सास ससुर दोनों को पता चल चुकी थी, लेकिन रोहेल की ढिठाई का ये आलम था कि मुझसे कहने लगे कि तुमने मेरे घर वालों को बताया, अच्छा नहीं किया। नूर, बात कमरे की हद तक थी, अगर तुम कमरे में ही रहने देती तो ज़्यादा अच्छा होता। रोहेल ने गुस्से में आकर मुझे एक तलाक दे दी। कहने लगा, नूर, मैं तुम्हें एक तलाक देता हूँ। ये सुनकर मेरे ससुर ने रोहेल के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगे, ये क्या बकवास की है, ज़रा सी बात पर तुम अपनी बीवी को तलाक दोगे? ख़बरदार, जो अब एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला तुमने। लेकिन मुझे लगा कि मेरा सब कुछ टूट कर बिखर गया। मैं फ़ौरन से उसी हालत में घर से बाहर निकल गई। ना मेरे सर पर दुपट्टा था, ना मेरे हाथ कोई सामान, और ना ही अमर। मैं रोते हुए तेज़ तेज़ सड़क की जानब जा रही थी। जैसे ही मेन रोड तक पहुंची, मैंने रिक्शा लिया और अपने घर चली गई। मुझे रात के इस पैर रोते हुए देख के मेरे माँ बाप बहुत परेशान हुए थे। मेरा भाई मुझसे वजह पूछने लगा। मैं अपने भाई के साथ लग के फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, मुझे रोहेल ने तलाक दे दी। ये खबर मेरे घर वालों पर क़यामत बन के टूटी थी। बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था रोहेल के साथ। मेरे भाई का उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक तलाक दी, अगर तुम्हारी बहन ने अपना घर बसाना है तो उसे बोलो शराफत से घर पर वापस आ जाए, वरना 3 महीने बाद दूसरी तलाक भी दे दूँगा। मेरा भाई कहने लगा कि मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं, जहाँ तुमने एक दिया है वहाँ बाकी की 3 तलाक भी दे दो, लेकिन अब वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। हर रोज़ मुझे अमर की याद सताती थी। साल का तो था वो, लेकिन मैंने दिल पर पत्थर रख लिया, क्योंकि अगर उसे भी अपने साथ ले आती तो रोहेल को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कोई भी दूसरी औरत किसी का बच्चा नहीं पालती, इसलिए मैं वहीं छोड़कर आ गई थी। 15 दिन हुए थे मुझे मेके में बैठे हुए, जब मेरे सास ससुर अमर को साथ लेकर आए थे। वो रोए जा रहा था। उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह से तड़पा था। इससे पहले कि मैं उसकी जानब लपकती, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नफ़ी का सर इशारा किया। कहने लगा, नूर, अपने कमरे में जाओ, ये इनसे मैं बात करता हूँ। मेरी सास कहने लगी, नूर, हमारे साथ वापस चलो। क्यों हमाकत कर रही हो? रोहेल उस लड़की से शादी करके रहेगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। एक बार सोचा कि वापस लौट जाती हूँ, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन ही क्यों कुर्बानी देती है? अगर रोहेल शादी कर सकता है तो नूर की भी दूसरी शादी हो सकती है। अपने बेटे से कहो बाकी की तलाक भी दे दे मेरी बहन को। मैं नूर को उसके नाम पर बैठाए नहीं रखूँगा। मेरी सास रोने लगी। कहने लगी, अमर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ही औलाद की खातिर कुर्बानी देती है। मर्द तो ऐसे शौक़ पालते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ बाज भी आ जाते हैं। मेरे भाई ने कहा, माफ़ कीजिएगा खाला जी, लेकिन हमारे माशरे में आप जैसी माँओं की ऐसी बातों की वजह से ही बेटे बीवी के होते हुए बाहर के शौक़ पालते हैं, क्योंकि उनकी तरबियत आप जैसी माएँ ये सोच के करती हैं कि लड़का है, अगर ऐसा काम शौक़ में भी कर ले तो खैर है, कोई बात नहीं। सब्र सिर्फ़ औरत का ही शेवा नहीं है। जाइए आप यहाँ से। मेरी सास और ससुर वापस चले गए। अपने बच्चे के बिना ज़िंदगी तो मेरी भी उदास गुजर रही थी, लेकिन मेरा भाई मुझसे कहने लगा, तुम सब्र करके बैठी रहो,
अगर तुम यूं चली गई तो रोहेल एक के बजाय 10 औरतों से ताल्लुकात बनाकर दिखाएगा तुम्हें, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। 2 माह गुजरने के बाद रोहेल मुझे लेने आया था। इत्तेफाक था कि दरवाज़ा मैंने ही खोला था। शेफ बड़ी हुई थी, आंखें मतुर्रफ थी। मुझे देखकर कुछ शर्मिंदा सा भी था। उसे देखकर मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उसने अपना हाथ रख कर दरवाज़ा बंद होने से रोका था। नूर, खुदा के लिए मेरी एक बार बात सुन लो। अपना फ़ोन तक तुमने नहीं उठा रही, वो भी अपने भाई को पकड़ा रखा तुमने। मैं पिछले 15 दिन से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ यूँ, लेकिन तुम्हारा वो भाई। दरवाज़ा खोलो नूर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दरवाजे जो धकील कर अंदर आ चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर मेरा भाई और वालिदैन भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। दरवाजे पर रोहेल को देखकर मेरा मूड ऑफ होने लगा। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो कहने लगा, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। ये सुनकर मेरा भाई गुस्से से फनकार कर बोला। कहने लगा, वो बीवी जिसे रात को तलाक देकर तुमने घर से निकाल दिया था? रोहेल कहने लगा, एक तलाक दी थी, रजू की गुंजाइश है मेरे पास। मुझे नूर से बात करनी है और इसलिए बगैर यहाँ से लिए नहीं जाऊँगा। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, नूर तुम कमरे में जाओ। मैं कमरे में जाने लगी, लेकिन रोहेल की अगली बात सुनकर मेरा कदम वहीं जमे थे। कहने लगा, नूर अमर बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरा बच्चा मर जाएगा, खुदा के लिए मेरे साथ चलो। ये सुनना था कि मैं तड़प कर पीछे पलटी थी। मैंने कहा, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? रोहेल, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, जब से तुम गई हो बुखार नहीं उतर रहा उसका, बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं फ़ौरन से उसके साथ चली गई। 3 दिन में अपने बेटे के पास हॉस्पिटल में रही थी। मुझे देखकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बेख्तियार मैंने उसे गोद में भरकर सीने से लगा लिया था। मम्मा मम्मा कह रहा था। मैं उसे बेतहाशा चूमने लगी थी। 3 दिन में उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो रोहेल मुझे घर ले गया। मेरी सास ससुर भी बहुत खुश हो गए थे। रात को अमर के सोने के बाद रोहेल मेरे पास आ गया। मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो नूर, मुझे समझ आ गई है कि बीवी बीवी ही होती है। ये हर दूसरे लड़के से दोस्ती करने वाली लड़कियां कभी घर नहीं बसाती, उन्हें सिर्फ पैसा और अय्याशी ही अजीज़ होती है। मेरा तुमसे वादा है, मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूँगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ रोहेल, आपके लिए नहीं। मेरी बात सुनकर वो बेचैन सा हो गया था। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे ज़्यादा अपने बेटे से प्यार करती हो, मुझसे बहुत नाराज़ हो, तुम्हें होना भी चाहिए। लेकिन नूर, मुझे हर हाल में तुम्हारे साथ रजू करना है। 3 महीने होने में चंद दिन बचे हैं, प्लीज़ इनकार मत करना। पहली तलाक को 3 माह होने वाले थे। रोहेल को इस बात की बेचैनी थी। मैंने उसे इनकार नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में इसलिए अब वो मोहब्बत नहीं रही थी जो पहले कभी होती थी। वो मेरे पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन बदले में मैं उसे वो प्यार नहीं दे सकती थी जिसकी वो मुझसे उम्मीद लगाए हुए था। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, किसी शीशे की मानद। एक बार दरार आ जाए तो कभी पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। मेरी खामोशी रोहेल को खिलने लगती थी। बार बार कहता था, नूर तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं देती थी। मर्द क्यों ये समझता है कि वो कुछ भी कर ले, बीवी उसे हमेशा माफ़ करके पहले जैसी मोहब्बत देती रहेगी। ऐसा नहीं होता। मैंने उसके घर को बसाने की खातिर अपनी नींद, अपना चैन, अपनी खूबसूरती को पस पुष्ट डाल दिया था, और उसने अपनी वफा देने के बजाय एक तलाक दे दी। होश उस वक़्त आया जब उस लड़की ने उससे शादी से इनकार कर दिया। फिर मुझसे पहली सी मोहब्बत की क्यों उम्मीद रख रहा था? आप बताएं, क्या औरत ये सब होने के बाद पहले जैसी मोहब्बत कर सकती है? वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करें।